पाठ सब गाडी मारली त्यांनी, अशी गाडी मारली ना त्यांनी, सोपं गाडी. आणि त्याला मी खरंच त्या बाबू खूप आहे, बाबूस वेळेत त्यांनी पैसे पण दिले त्याला, जे मेरे उसने दिले. बाकी बँकेत बोलायला सगळे माणसं आहेत खाली, मैं ऐसा है, मैं वैसा है, मैं ये है, मैं शाहरुख हूँ, मैं सलमान हूँ, मैं ऋतिक हूँ. कहने का 2 दोस्त. अरे आप लोग यह काम लेकर कर रहे हो, अपने मन का राजा नहीं. तो कुछ 2 असाइनमेंट लगाया था मेरे को, उधर ही बैठ के बोला था मेरे बॉस, और वहाँ से फिर मैयत का भी मुझे बोला था. मैंने फोटो नहीं डाला, मैं सीधा बोला भाई मैं मैयत में जा रहा हूँ, मैं नहीं डालता. अरे सुनील ऐसा क्या, मेरा आज के दिन तुम मुझे 4 गाली दो या मुझे मारो, कुछ भी बोलो. हाँ सर एकदम सामने सर, एकदम सामने आप सर, यहाँ पे कॉर्नर, यहाँ पे सर, यहाँ पे सेकंड लास्ट कैमरा सर. पैकअप कर देंगे नाटक तरीके से. सर यहाँ पे सर आपकी राइट में आ जाओ सर. तो यहाँ पे सामने एकदम सामने. तो यहाँ पे कोणी अडवली, कोणी सांगा मला. कुछ बात मागे लास्ट टाइम अडवलं, कल बात क्या नाम है और आपका क्या नाम है? अरे एक अरे बड़े काय करतो तुम्ही? ये वीडियो के लिए ऊपर है. कौन बोला रे? सर रुके ना, सर रुके. जरा सिक्योरिटी जरा थोड़ा पीछे जरा. अच्छा ठीक है, चला एकत्र घेऊया चला. सर क्लोज. अभी सोलो जिम्मी सर का एक सिंगल पिक्चर. तो थैंक यू. जिम्मी सर थोड़ा इधर है. बस जिम्मी सर सामने सेंटर इस तरफ थोड़ा सा. सर आपके लेफ्ट में. जिम्मी सर एकदम सामने आप. यहाँ पे जिम्मी सर आपके लेफ्ट सर यहाँ पे. सर थोड़ा बॉडी आप. जिम्मी सर एकदम सामने सर. सामने इस तरफ. सर ये लेफ्ट. जिम्मी सर यहाँ पे. सेंटर एकदम सामने सर. जिम्मी सर थोड़ा. जिम्मी सर लेफ्ट में. एक्सक्यूज मी, जिम्मी सर यहाँ पे. अभी लेफ्ट में. सर लेफ्ट में. सर सेंटर. सर सेंटर. सर राइट. जिम्मी सर यहाँ पे. अभी जाओ इधर. वीडियो वालों को ऊपर चलो. पार्टी या पुढे. मॅम या नम्रता जरा पाटील मॅम या ये गौतम पाटील मनोज पाटील मैम सेंटर. या मॅम या सेंटर यो. एक्सक्यूज मैम. हेलो मलबेरी सेंटर. अंदर चले. एक्सक्यूज मैम. हेलो. दादा सिक्योरिटी दादा. एक्सक्यूज मैम. अरे थांबा जरा मला आम्हाला. Okay, go from left to right. Go from left to right. Yes, you're right. Yes, straight. Yes, straight. ये मैम. Okay, thank you. डन. And that's Shorgul's latest poster, releasing on 24th June. We have debuting actress Suha Gazen and Swatantra Vijay Singh.
एक मिनट हाँ हाँ इधर है एक मिनट और हमारे डायरेक्टर है तो फिर आप लीजिए एंड आवर डायरेक्टर्स जितेंद्र तिवारी एंड प्रणव सिंह From our star cast, we have Ejaz Khan. He plays an extremely special role in this film, and wherever you feel. Which one? Next to Suha? And we have Anirudh Dave, who's also featured in the track. And we have our creative director on the project, Shashi Verma. Our co-producers are Prashant Vijay Singh and Aman. Yeah, but how will they stand? Yeah. Let's start. Okay, so I open the floors for question answers. Yes, yes. Okay, guys, shoot your question. Hello, I'm Indira Basu from the Hindu Mumbai, and it's wonderful to be here today, and thank you so much. Congratulations to the team. My question is directed to Mr. Niladri Kumar. Sir, I'm a fan of your music, and it's wonderful to see you as in the role of a music director. So, what was it like to don this hat? Namaskar, greetings to everyone. This place that we are in, this sunny super sound, you could say I started my honing my skills as a musician in this studio where probably thousands of sound recordings has happened here. And as a musician, sometimes was not even allowed in a way because the hierarchy of how the music industry is, that as a musician, you're not supposed to go into the monitor room and check out how the mix is sounding and how you play it. And from there to here, when today to be able to do the music for a film or song especially is, I don't know, I mean, I'm speechless in a way. It's such an honor. And the added honor is to have this lyrics written by Sibbal Saab, because when I met him, I actually was like, I didn't know what to say to see his passion. At his stature, to have this kind of passion and love, it was like I was standing with a teacup in front of a huge wave. So when the wave trying to fill the water to get some lyrics, but the wave is so huge that the teacup fills up and it empties at the same time. So I'm just left with the wet teacup. So that is the feeling when you are with such a stalwart. And then to have this song featured in a movie which has one of the most brilliant star cast, really. What actors, brilliant. So it was, I just have one word, overjoyed. Thank you. Thank you. I have one more question, please. This is for Mr. Jimmy Shergill. What's your journey been like from the soft romantic boy in Mohabbatein till now, playing the rough guy? Good evening, everyone. I think the journey started with a film called Machis, which was directed by Gulzar Saab, and then Mohabbatein, and now finally
शोरगुल. So ठीक है, बहुत अच्छी रही है. I think it's been slow, it's been steady, and suddenly the boat is being rocked a bit because of the issues being created with the projection of the film. Because at the end of the day, let's come back to Shorgul, and I think it's a beautiful love story with the backdrop of politics, and a film which deals with humanity. I think that's the reason why most of the actors said yes to doing this film or being part of this film, was because above politics, above religion, it talks about humanity. And what was your greatest challenge being in this film, playing your role? The challenge to yahi tha ki I had never played a role like this, a politician that also very ambitious, and he can go to any extent to achieve what he wants to achieve. And I think बहुत कुछ जो है वो आप जब रियल लाइफ में नहीं कर पाते हो तो आप स्क्रीन पे करने की कोशिश करते हो. मैं ज़्यादातर जब मैं स्कूल में होता था, आई ऑलवेज वांटेड टू बी इन द आर्म्ड फोर्सेस. सो मे बी वो भड़ास मेरी, जब मेरे को लोग किसी भी चाहे वो पुलिस ऑफिसर का रोल हो, चाहे आर्मी का रोल हो, तो वो बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि वो शायद मेरी ड्रीम थी, और उसको जब मैं स्क्रीन पे लाता हूँ बड़े पैशन के साथ लेके आता हूँ. तो वही था. तो अब आई होप कि बहुत ज़्यादा पैशन इसमें भी लोग ना ढूंढें, क्योंकि मैं कभी पॉलिटिशियन नहीं बनना चाहता था. तो बट यस, एक एक्टर की भूख होती है कि जो मैं कर रहा हूँ उसको पैशनेटली करूँ, और अगर वो ऐसी फिल्म है जिसमें लोग आपसे प्यार करने लग जाएं, तो वो वैसा रोल आप उसी पैशन के साथ निभाइए. और जिस फिल्म में आप चाहते हैं कि वो आपको हेट करें, तो आप उसको भी उतने ही पैशन के साथ निभाइए, ताकि वो बाहर निकल के बोलें यार ये बहुत खतरनाक था. Thank you so much. तो ये सब खड़े हुए हैं ना जो ये करवाने वाले, तो क्या लुक है, क्या है, सब कुछ. तो आई थिंक सबसे बड़ा जो है वो जो अपना क्रेडिट जो है किसी भी कैरेक्टर को लेके या उसकी लुक को लेके, आई थिंक वो डायरेक्टर को और उनकी पूरी टीम को जाता है. चाहे वो डायरेक्टर हो, क्रिएटिव डायरेक्टर हो, इन लोग की पूरी एक टीम होती है, जो राइटर्स जो बैठ के वो डिस्कस करते हैं. मुझे इस वाली में सिर्फ यही था कि I never wanted this character to visually come out as a साहिब, जो साहिब बीवी गैंगस्टर पार्ट 1 और 2 में मैंने किया है. तो मेरे को सिर्फ वही एक चीज़ ऐसी थी कि ऐसा ना निकल के आए. तो उसके ऊपर जो इन लोगों ने मेहनत की थी कि भाई ये नेता है, सो इसने वो कुर्ता पजामा टिपिकल नेता वाला पहनना है, उसको थोड़ा सा अलग कैसे करना है, वो इन लोगों ने उस चीज़ के ऊपर काम किया था. और इस टाइप की आई थिंक लुक भी मैंने किसी और फिल्म में ऐसी नहीं रखी है. तो आई थिंक एक मेहनत जाती है सबसे पहले फॉर द कैरेक्टर की उसकी लुक क्या होगी, और उसके बाद डायलॉग्स. आई थिंक अगेन इस फिल्म में भी कुछ बहुत कुछ तो आपने ट्रेलर में ही देख लिए हैं, और बाकी सारे जो हैं वो देखेंगे. तो मैंने बुलेट राजा में मेरा एक सीक्वेंस था जो मोन्टाज के अंदर आता है और गाने के ऊपर है. तो उसमें एक रैली थी जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं, जहाँ पर आप एक भाषण दे रहे हैं. तो वो करते हुए मुझे बहुत मज़ा आया था, और मुझे ऐसा लगा था यार ये मैंने ऐसा लाइफ में कभी नहीं किया है कि इतने हज़ारों लोग हैं और उनके सामने आप वो चीज़ें जो हैं उस हिसाब से उनको. बट आई न्यू दैट इट इज़ कमिंग एज अ मोन्टाज. वो गाने के ऊपर आएगा तो उसमें कोई डायलॉग्स नहीं आएंगे. तो जब ये रोल मुझे ऑफर हुआ था तो इसमें कई सीन्स ऐसे थे जो 3-3, 4-4 पेज के, 2.5 पेज के, जिसके अंदर की बहुत बड़ी बड़ी रैलीज़ को आपने एड्रेस करना था. तो वो एक चीज़ जो है मैंने वो मंच के ऊपर चढ़ के वो फीलिंग ज़रूर ली, जो आई थिंक पॉलिटिशियंस शायद लेते हैं. Hi Jimmy, this is Vedita Oye from Lehre TV over here. Acha, I wanted to ask you, is this your role inspired from real life politician? जी नहीं मैम, ये एक सिंपल सी चीज़ है कि जब कोई फिल्म बायोपिक होती है तो उसका एक प्रोसीजर होता है, और कोई भी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर
इतना बेवकूफ़ नहीं होता है कि वो प्रोसीजर को ना फॉलो करे, क्योंकि उसके बाद एंड में आपके साथ खड़े होने वाला कोई नहीं होगा, ना सेंसर बोर्ड आपके साथ खड़ा होगा, ना सेंसर बोर्ड उस चीज़ को पास करेगा, ना कुछ होगा। तो जब बायोपिक होती है तो उसका एक प्रोसीजर होता है। आप जिन लोगों के ऊपर बना रहे हैं वो कहानी, उनसे जाके आप मिलते हैं, उनसे एनओसी लेते हैं, उनको कहानी सुनाते हैं कि ये हमारी कहानी है। उसके बाद आपके जो एक्टर्स हैं वो उन्हें जाके मिलते हैं कि इनका मैनरिज्म्स क्या है, ये ड्रेसअप कैसे करते हैं। पहले तो कास्टिंग ही उस हिसाब से होती है कि अगर किसी आदमी से मिलता जुलता रोल है तो वो कैसा देखने में लगता है, तो वैसा ही एक किरदार जो है, एक एक्टर जो है, आप उसको उस किरदार में लेके आते हो। तो ऐसा हमारी फिल्म के अंदर कुछ नहीं था। और प्लस सेंसर ने फिल्म देखी है। सबसे पहली प्लेट, आप सब तो यहाँ पे जानते ही हैं, इतनी फिल्मों की प्रमोशंस होती हैं कि सबसे पहली प्लेट ही ये होती है कि ऑल कैरेक्टर्स इन दिस फिल्म आर फिक्टिशियस एंड बेयर नो रिजेम्बलेंस टू एनीबडी, एंड एनी पर्सन लिविंग और डेड बेयरिंग एनी रिजेम्बलेंस इज कम्प्लीटली कोइंसिडेंटल। तो वो प्लेट जो है वो इन इटसेल्फ एक तरीके से वो प्रूफ होता है उस चीज़ का। तो बाकी फिल्म जो है, इवेंट्स बहुत सारे ऐसे हैं जो पूरे देश भर में कहाँ कहाँ ऐसे ऐसे इवेंट्स हुए होंगे जिनको पिरो के हमने इस कहानी में, जो कि यूपी में बेस्ड है, वहाँ पर किया गया है। इट वाज आई थिंक कहीं ना कहीं फिल्म के लिए इट्स वेरी गुड दैट पीपल आर ब्रिंगिंग अप ऑल दीज थिंग्स दैट रियल लाइफ पे बेस्ड है सारा कुछ है, विच इज़ वेरी गुड फॉर द प्रमोशन ऑफ द फिल्म। आई थिंक फिल्म जो है, जब छोटी फिल्में के पास, छोटी फिल्मों के पास वो नहीं होता है जो बड़ी फिल्मों के पास होता है कि एक बार धमाके के साथ आया हो, पूरी दुनिया को पता लग जाता है कि ये फिल्म सच एंड सच डेट को आ रही है। तो आई थिंक वो उस हिसाब से आई थिंक इट इज़ मेकिंग हेड्स टर्न, इट इज़ पीपल आर दिस थिंग। द ब्यूटी इज़ दैट द नॉर्मल ऑडियंस इज लविंग द प्रोमो। तो इसी तरीके से जितने ज़्यादा लोगों को पता लगेगा, वो लोग जाके फिल्म को पहले दिन देखेंगे, उन्हें फिल्म पसंद आएगी तो उतने ही ज़्यादा लोगों को अगले दिन भेजेंगे। आप समझ रहे हैं? दैट इज़ व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। एंड एज फार एज आई एम कंसर्न, कोई बायोपिक नहीं, इट्स अ ब्यूटिफुल लव स्टोरी सेट अमिस्ट दिस क्रेजी वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स। मुझे मैं, मेरे गाने वाने नहीं है पिक्चर में, मैं थोड़ा खतरनाक टाइप का कैरेक्टर है मेरा, बहुत उस टाइप का, बहुत पावरफुल एक रोल है जो लाइनों से भी आपको पता लग रहा है। तो मैं आई थिंक ऐसा कैरेक्टर मेरा अगर गाने वाने गाने लग जाएगा तो बड़ा अजीब लगेगा। तो मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा वो म्यूज़िकल चीज़ों से मेरे को उसकी वो नहीं है अभी जानकारी सर। वो डेफिनेटली बाकी की टीम जो है दे विल प्रोवाइड यू विद दैट डिटेल्स। हेलो कपिल सर, नमस्ते। मेरा प्रश्न कपिल जी से है। सर, आप एक बड़े पॉलिटिशियन हो और आपने हाल ही में एक बुक भी लॉन्च की है, एल्बम, और प्लस अभी आप जो लिरिक्स लिए इस मूवी के लिए, कैसे आप टाइम निकाल रहे हो? एक तो बात वो है, और सेकंड थिंग, ऐसे कई लिरिक्स आपके पास हो तो उसमें आप आपका ये पैशन कैसे बढ़ गया, लाइक अबाउट राइटिंग लिरिक्स? नहीं, मैं शुरू से ही लिखने पढ़ने का शौक़ था और बढ़ता गया। जब मैं स्टूडेंट था तब भी लिखता था, और फिर मैंने 2 किताबें भी अंग्रेज़ी की पोइम्स की पब्लिश की हैं मैंने, और मुझे ऐसा लगा कि अंग्रेज़ी की पोइम्स ज़्यादा चलती नहीं है क्योंकि ऑडियंस बहुत कम थी है, तो क्यों ना हिंदी में शुरुआत की जाए। तो पहले तो बहुत झिझकता था कि मैं लिख भी पाऊँगा कि नहीं, लेकिन जब प्रयास किया तो ठीक ठाक लगा, और कुछ मेरी अंग्रेज़ी की जो पोइम्स थी उर्दू में ट्रांसलेट हुई, उसको म्यूज़िक दिया गया। और गुलशन कुमार जी मेरे पुराने दोस्त और क्लाइंट भी थे, तो भूषण जी को मैंने कांटेक्ट किया और वो हंसने लगे, सोच रहे थे कि ये पॉलिटिशियन आदमी है, ये कैसे लिख पाएगा। तो आए, वो दिल्ली आए, उन्होंने जब सुना तो उनको बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने मुझे बॉम्बे बुलाया, फिर प्रीतम वगैरह के साथ मेरी मुलाकात करवाई। तो कई गाने जो मेरी प्राइवेट कलेक्शन में हैं अभी भी मेरे पास हैं, दे वर पुट टू म्यूज़िक। तो मेरे लिए हरिहरन ने गाया है, अरिजीत ने पहले भी गाया है, प्रीतम ने म्यूज़िक भी दिया है, ललित ने भी दिया है, और कई लोगों ने म्यूज़िक दिया है, वो मेरी प्राइवेट कलेक्शन है। और फिर यशोदारा ने 2 मौके मिले, एक बंदूक में मेरा डुएट मैंने लिखा था, और फिर इस दौरान ये मौका मिला। तो मैं समझता हूँ कि स्क्रीन द्वारा ही जो आपके साधारण विचार हैं वो जनता के बीच पहुँच जाते हैं, पहुँच सकते हैं।
और ये बहुत बढ़िया मीडियम है। और अगर आपको एक एक्सेप्शनल म्यूजिशियन मिल जाए जैसे नीलाद्री जी हैं, और एक एक्सेप्शनल टैलेंट मिल जाए, तो समझ लीजिए कि सोने में सुहागा। तो आई थिंक इस मूवी के द्वारा जो लिरिक्स मैंने लिखे हैं, जिसकी वजह से जो सोल है लिरिक्स की वो नीलाद्री जी ने दी है, तो जब जनता तक पहुंचेगी तो उनको ये समझ में ज़रूर आएगा कि मोहब्बत के द्वारा कोई और रास्ता ज़िंदगी में है ही नहीं। नहीं, पहले मुझे सुनाई गई और फिर नीलाद्री जी मेरे पास आए, और फिर मतलब कई महीने लगे ये लिरिक्स लिखने में, क्योंकि उसको स्टोरी के साथ जोड़ना, डायलॉग के साथ जोड़ना, वो इमोशन जो सबटेरेनियन फैक्टर है सारी फिल्म में, उसको लिरिक्स के साथ जोड़ना ये कोई आसान काम नहीं होता। और मैं तो बड़ा अनाड़ी हूँ इन चीज़ों में, तो मैंने प्रयास किया और ठीक ठाक ही लग रहा है। हाँ, ज़रूर सुनेंगे, हाँ, ज़रूर लिखेंगे और सुनेंगे। लेकिन ये इन्होंने सही कहा जिमी जी ने कि भैया एक्टर को पॉलिटिशियन नहीं बनना चाहिए और पॉलिटिशियन को एक्टर भी नहीं बनना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, पॉलिटिशियन को पॉलिटिशियन ही रहना चाहिए और एक्टर को एक्टर ही रहना चाहिए, और कुर्ते पजामे में भी नहीं आना चाहिए ऐसे जैसे प्रोग्राम में। My question is Suhaji. Hi. Actually, actually, I have a certificate as a lifeguard, and but still, it was extremely very difficult to hold your breath under the water, and it was quite a long day of shooting, and I had only one problem, that was the dress. That was extremely tight, so I couldn't breathe properly, and but still, by the end of the day, we made a really amazing work, and the teamwork was very fine. And I had a lot of support down under the water, and now I'm seeing it for the first time, and I'm really excited. It looks amazing. Yeah, but as a lifeguard, it was very difficult for me as well. So yeah. Training nahi kiya, but like I'm doing mostly swimming twice a day. So and then before the shooting, I started to hold my breath under the water and swimming like how to say, for longer time than an hour. So preparation किया मैंने, फिर भी end में थोड़ा सा मुश्किल हो गया. My character in the movie, she is a very innocent and lovely girl, and she has a beautiful friendship with Raghu. She's growing up together, and then she's about to get married to Salim. So she is very kind and she loves everyone. Everyone loves her. She's all the time smiling. And in this movie is actually the story about Zainab, how her life changed completely. And when I read about the script and I met Pranav, so I was, in the first second, I felt very connected to Zainab. And so mostly of the time, I was also completely all the time thinking, like Jimmy sir also said, what kind of a look you're giving to the character. So, and I thought maybe a little weight gaining, that she should have the look of a normal village girl. And yeah, that's her character. She's actually not thinking about anything. She is completely fine with her life. And everything is normal, lovely, college. Yeah, that's it. सभी को मेरा नमस्कार। टेलीविज़न पहले भी कर रहा था, अभी भी कर रहा था, और ये सफ़र जो है ख़ास तौर पे मैं बोलूँ तो पिछले कुछ सालों में टेलीविज़न में और फिल्म में कुछ बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहा। अंतर सिर्फ पर्दे का है, इनेक्टमेंट, अभिनय वही चीज़ है। बस ये है कि थोड़े से पैमाने बदल जाते हैं, बजट बदल जाता है, चीज़ें और जगह बदल जाती है।
और साथ के जो को एक्टर्स होते हैं वो बदल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक डिफरेंस जो है वो अब नहीं रहा है, तो करने में भी मज़ा आता है। और मैं इस फिल्म में जब आया तो उस समय भी मैं एक सीरियल कर रहा था, उस समय सब टीवी का यम है हम, तो प्रणव से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा ऐसा है फिल्म है, 10-15-20 दिन का काम है, ऐसा है। तो मैंने कहा यार करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन जहाँ पता लगा कि सिब्बल साहब हैं, गाना मुझ पे फिल्माया जाएगा और जिमी वहाँ पर हैं, आशुतोष जी वहाँ पे हैं, तो मैंने कहा इन लोगों के साथ काम करने का एक अपनी एक अलग मज़ा है, एक अलग रवानगी है। तो बस उस चीज़ को मान के आगे बढ़ गए और फिल्म आपके सामने है और सब लोगों ने बहुत मेहनत की है। और ख़ास तौर पे कुछ एक सीक्वेंस हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसमें जो एक डेथ सीक्वेंस होता है रघु का, और जो स्ट्रगल है ज़ैनब का, और जिस तरीके से एक तरफ पूरा एक राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है और उस तरफ पूरा एक जो एक सफ़र जो है पूरा एक क्रेसेंडो जो है फिल्म का, इट्स वन ऑफ इट्स ओन काइंड एंड डेफिनेटली पीपल वुड वॉच एंड दे वुड लव माय वर्क। थैंक यू सो मच। माय क्वेश्चन इजाज, ये आपका रोल यहाँ ये आप विलेन का रोल अदा कर रहे हो, तो क्या आप बताएंगे कुछ इसमें कितना आपका खून खौल उठा? गुड इवनिंग यार, मैं इसको जो कैरेक्टर में प्ले कर रहा हूँ मुस्तकीम, इसको विलन नहीं कहूँगा। मुझे लगता है कि हम जब एक्टिंग करते हैं, जो भी करते हैं उसे एक बैक स्टोरी देते हैं, जस्टिफाई करते हैं उनके एक्शंस, और किसी के लिए भी जो भी आप करते हो वो गलत नहीं होता। इंस्टिंक्टिवली उस वक्त आप समझते हो कि आप सही कर रहे हो। सो मैं ये नहीं कह रहा कि फिल्म में जो मुस्तकीम ने जो भी किया या जो कर रहा है या भड़काया गया वो सही है, लेकिन बस ये कह रहा हूँ कि मुझे वो नेगेटिव नहीं लगा। और खून कितना खोला, वो तो गर्मी से ही खोल रहा था और कुछ नहीं। कुछ 48 डिग्रीज थे वहाँ, बिना पंखे के भी हम शूटिंग कर रहे थे। बहुत सब ने बहुत मेहनत की। इनफैक्ट सुहा बेहोश भी हो रही थी, उन्होंने मुझे कुछ 25 टाइम थप्पड़ मारे थे, बस तभी खून खोला, नहीं तो बहुत ठंडे थे हम। शुक्रिया। Yeah, I guess so. We just saw the Madari trailer a week or so back, and now this. So I guess, yeah. कपिल जी, काफ़ी कितने संतुष्ट लगे आपको ये एक नेता की भूमिका में? जिमी वो अच्छी तरह से निभा रहे थे। नहीं, आप तो इतने सारे मतलब अपोजिशन और खुद वो ऐसी एक्टिंग मैंने पॉलिटिशियन में नहीं देखी। किससे सीखा? मतलब ये कांग्रेस के हैं तो कांग्रेस अध्यक्ष, ये तो इनसे पूछना पड़ेगा। क्या है सर कि आजकल ना आप लोग क्या करते हो कि ट्रेलर ही देख के बस एक्टिंग को ग्रेड करने लग जाते हो, क्या किया है काम यार, ये है वो है ऐसा। वो पिक्चर भी देख लो, उसमें भी अगर अच्छा काम किया तब बोलो। अभी तो क्या चक्कर है कि वो ट्रेलर देखे क्या एक्टिंग की है। अरे ट्रेलर में क्या एक्टिंग होती है? ट्रेलर में तो कट कट के चीज़ें आई हुई हैं, एक्टिंग तो दिखती नहीं है ट्रेलर में। तो किरदार आपका दिखता है कि भाई ये है वो है। पर आजकल वो बड़ा अजीब सा हो गया कि ट्रेलर को ही देख के लोग बोलने लग जाते हैं क्या एक्टिंग की है यार, क्या एक्टिंग हो। पहले पूरी पिक्चर देखो तब बोलो। क्या पता पिक्चर में बहुत गंदी एक्टिंग की हो। आप समझ रहे हो ना? बाकी ये किरदार जो है ये कोई फिक्टिशियस पार्टी है जो आपको दिखेगी उसके अंदर, उसका किरदार है, फिक्टिशियस किरदार है और थोड़ा सा है खतरनाक भी है, पावरफुल भी है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एम्बिशियस भी है, बहुत जल्दी सब कुछ पाना चाहता है और इसकी अपने तरीके की थिंकिंग है और ऐसा नहीं किया था किरदार पहले तो इसलिए किया है। किसी पॉलिटिशियन से आप मतलब प्रभावित हैं? मतलब जो आपको मतलब जिसको आप मानते हो, जिससे कपिल जी के अलावा? नहीं यार, मैं किसी से प्रभावित होके अगर करने लग गया तो फिर तो वो बायोपिक नहीं वैसे नहीं, मतलब वैसी वास्तविक जीवन जो में घुमा के लाए हो क्वेश्चन। और वही मैंने कहा था, अगर बायोपिक होती तो मैं जाता, मैं उस आदमी की मैनरिज्म्स देखता किसी भी इंसान के ऊपर। बाकी किरदार भी अगर किसी की रियल लाइफ पे बेस्ड कोई किरदार कर रहे हैं, एनी एक्टर वुड गो एंड सी द मैनरिज्म्स और वो कैसे उठता है, चलता है, क्या कपड़े पहनता है, कैसे बोलता है। आप समझ रहे हो? नहीं मैं नहीं समझ रहा सर। मैं लेकिन सवाल ही एक्चुअली मेरा ये है कि मतलब वास्तविक जीवन में जैसे कि हम लोग प्रभावित होते हैं, किसी को एडमायर करते हैं, तो आप किसी नेता को करते हैं, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। आशुतोष राणा जी को। वही नहीं आया आज। वो नहीं आया आज।
ऐसा क्यों और क्यों हुआ? मैंने जो अगर मैं ये देखूंगा कि किसी किरदार को मैं कैसे अप्रोच करता हूँ तो वो जो है वो हर किरदार के लिए कुछ अलग होगा। अब मैंने फगली में एक बहुत ही नेगेटिव पुलिस ऑफिसर का रोल किया था, तो अब ऐसा तो मैं कहाँ जाके ढूंढता है ऐसा वाला आदमी जिसको मैं फॉलो करूं और उससे देखूं कि ये नेगेटिव कैसे करता है या क्या करता है। तो अपने ही दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, डायरेक्टर बहुत सारी चीज़ें लेके आया होता है कि इसका रंग ढंग ये होगा, इसका चलने का तरीका ये होगा, इसका इस टाइप के कपड़े ये पहनेगा, इस टाइप की लुक होगी इसकी, इस तरीके से वो करेगा। आधी चीज़ें उसकी होती हैं, आधी चीज़ें जब आप ऑन द स्पॉट पहुंचते हो, कई बार हम लोग को फिल्में गुरिल्ला स्टाइल करनी पड़ती हैं कि जो सर रेडी है सर पूरा अभी पब्लिक रेडी है, 55 डिग्री का टेम्परेचर है, ये सब भाग जाएंगे, जल्दी से आइए और जल्दी से कर दो। कई बार आप सोचते भी नहीं हो कि हाथ ये वाला उठाऊंगा कि वो वाला उठाऊंगा, तो आगे पहले एक उठा देते हो फिर दूसरा और फिर दोनों उठा देते हो और फिर उतनी देर में टेक ओके हो जाता है, बाद में आप देखते हो तो ये तो बहुत अच्छा लग रहा है यार। तो कई बार चीज़ें ऐसे भी हो जाती हैं, ठीक है ना सर? समझ गया। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी को देख के या किसी को वो करके ही करना पड़े। नहीं, कपिल जी मैं आपसे पूछ रहा था, जैसे ये कह रहे हैं बायोपिक के लिए, किस मतलब नेता के ऊपर आप बायोपिक देखना चाहेंगे? किस नेता के ऊपर बायोपिक देखना चाहो? हम देख ही रहे हैं रोज वो नेता। मतलब सर कौन? अब आप समझ गए, कितने समझदार तो हुआ। उनके अलावा आपको जवाब मिल गया। सर ये आपने कितने समय में ये जो लिखा गाना कितना समय लगा आपको सर? वक्त लगता है इसमें, काफी 2-3-4 महीने लगे, क्योंकि हम हर वक्त चेंज हो रहा था कि ये इसमें बैठता नहीं है, अरिजीत ऐसे गा रहा है, वो कह रहा है कि आप इसको भी चेंज करो, ये अल्फाज यहाँ बैठते नहीं हैं, तो चेंज करना पड़ता था। जिमी जी जैसे आजकल तो कई बार ऐसा भी, जैसे जो ज्ञान मिला है हमें कि मतलब सेट पे ही गाने लिख दिए जाते हैं, तो मतलब आप तो मतलब काफी सोच विचार के मतलब लिखते होंगे फिर। मुझे तो मालूम नहीं क्यों, मैं तो सेट कभी गया नहीं। सर आगे फिल्मों के लिए भी आप कहानी वगैरह या कुछ लिखेंगे ऐसा? नहीं, ऐसा आप पूछोगे मैं एक्टिंग भी करना शुरू करूंगा कि नहीं, ये सब कुछ नहीं। मैं शौकिया तौर पे करता हूँ, कोई मेरा बिजनेस नहीं है, मेरा कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है, शौकिया तौर पे मैं करता हूँ और शौकिया तौर पे करता जाऊंगा, मुझे कोई और इंटरेस्ट नहीं है मेरा। प्रोड्यूसर्स ऑफ द फिल्म काफी शोर मच रहा है आपकी फिल्म का रिलीज की, काफी संतुष्ट हैं आप इस चीज से? बहुत संतुष्ट हूँ। द क्रेडिट गोज टू द पीआर टीम। सभी को मिलना चाहिए इस चीज़ का। तो सर कई बार जो हम लोग न्यूज़पेपर्स में जो देख रहे हैं, कहीं ऐसे वाद विवाद की बातें आती हैं, कितना आप इसको सही मान रहे हैं? कई बार डायरेक्टर्स के बारे में बात आती है, कई बार म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में बात आती है, तो आप नहीं, कुछ... हमारे पास इस तरीके का कुछ नहीं है, सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आप सबको देख रहे हैं, सभी लोगों से बात कर रहे हैं, सभी लोगों से आप बात कर रहे हो, तो उसमें आप देख सकते हो कि हमारी पूरी टीम यहाँ पे है, तो किसी भी तरीके का कोई बात नहीं आ रही है, वो थोड़ा बहुत तो होता ही है। थैंक यू सो मच, शुभकामनाएं आपको फिल्म के लिए। नहीं सर, ऐसे टिप्स तो मैंने नहीं ली, टिप्स बहुत सारी ऑलरेडी लेके आए हुए थे हमारे डायरेक्टर लोग और क्रिएटिव टीम जो है, ये मतलब ऑलमोस्ट जब सीन सुना भी रहे तो कर करके दिखा रहे थे, तो आधा काम तो मेरा कंप्लीट हो गया था कि वाह यार क्या चार्ज हैं ये लोग, एकदम स्पीच भी पढ़ के सुना रहे हैं तो इतने जोश और उसके साथ सुना रहे हैं, उनका आधा काम तो मेरा वहीं हो गया था। और सिब्बल साहब को मैं उधर लॉन्च पे, मतलब जब हम लोगों ने फिल्म को लॉन्च किया था उस टाइम पे, और बाकी आई थिंक सिब्बल साहब ने जिस तरीके से कहा कि वो लिरिक्स लिख रहे हैं, लिरिक्स ही लिखते रहेंगे, तो मैं भी बोल रहे हैं कि भाई एक्टिंग नहीं करेंगे और प्रोड्यूस भी नहीं करेंगे, है ना सर? सो हम भी अपनी एक्टिंग ही करते रहें तो बढ़िया है। अगर ये गुजरात के होते तो फिर वहाँ गुजरात में बना देते हैं। एक्चुअली कुछ कहानियाँ आपके जहन में हमेशा होती हैं, आप उनका बैकग्राउंड रचते हो, सोचते हो ऐसे दिखाएंगे, ऐसे करेंगे, तो ये ऐसे ही थी, कुछ चीज़ें, कुछ घटनाएं हम लोगों के दिमाग में थी, तो एक दिन मैं और प्रणव बैठे हुए थे, हम लोगों ने डिसाइड किया कैसे करते हैं, तो इनिशियली इट वाज प्लान्ड इंटरनेशनली, नहीं, फिर हम लोगों का, हाँ, बांग्लादेश
नहीं, न्यूज़पेपर की तमाम जैसे न्यूज़ होती हैं, कोई भी घटना कभी कभी आप न्यूज़ में पढ़ते हो या कहीं पे देखते हो तो आपको झकझोर सी देती है। आपको लगता है कि यार इस दौर में भी जहाँ पे इतनी नकारात्मकता फैली हुई है, नेगेटिविटी फैली हुई है, उसमें भी लोग मानवता को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं, कुछ बढ़िया कर रहे हैं, तो उससे आप इंस्पायर्ड होते हो। आपको लगता है कि ये कहानियाँ ज़्यादातर लोगों को पहुँचनी चाहिए, ज़्यादातर लोगों को ऐसा ही सोचना चाहिए जिससे हमारा समाज लंबे समय तक बचा रहे। तो ऐसे कुछ घटनाएं थी, कुछ न्यूज़ थी हम लोग के पास में, तो एक दिन ऐसे बैठे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोग इंटरनेशनली बनाना चाह रहे थे कुछ इस तरीके का, फिर फाइनली सेटल हुआ नहीं। और चूंकि हम लोग यूपी से ही हैं, तो यूपी वाले ड्रामा और पॉलिटिकल ड्रामा इन दोनों को बड़ा अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं, तो इस तरह हो गई सब। बहुत बेहतरीन एक्टर है, मैं इनका बड़ा प्रशंसक हूँ हासिल के दिनों से, तो जाहिर सी बात है मुझे लग रहा था कि ये कैरेक्टर ज़्यादा अच्छे तरीके से कर लेंगे। और कोई ऐसा ही आदमी हमको चाहिए था कि जो आपने डायलॉग डिलीवरी देखी ना, कि जिन्हें ये पसंद नहीं यहाँ से जाना होगा, तो ऐसा आप बताओ कोई बोल सकता था क्या? नहीं सर बोल चुके हैं, अब इनके सामने हम क्या बोल तो दिया इन्होंने, बोलते बोलते में यही ऐसे ही स्क्रिप्ट भी सुनाते सुनाते में ये लोग कर देते थे, एकदम बोलते निकल जाते थे। आजकल तो रियल लाइफ में भी मैं ऐसे ही देख रहा हूँ। ठीक है ना, हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, आप जितना मर्जी आक्रमण पॉलिटिशियंस पे करो, बिना पॉलिटिशियंस देश भी नहीं चल सकता, बिना पॉलिटिक्स देश नहीं चल सकता। आपका संविधान होगा तो पॉलिटिक्स होगी। पॉलिटिक्स जितना मर्जी आप नेगेटिव दिखा लो, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आपको उसके बिना पॉलिटिशियन बिना देश आगे बढ़ नहीं सकता। तो हम चाहते हैं कि एक ठीक नज़रिए से पॉलिटिशियन को देखो। सब पॉलिटिशियन खराब नहीं होते, सब पॉलिटिशियन अच्छे नहीं होते, सब अभिनेता खराब नहीं होते, सब अच्छे नहीं होते, सब मीडिया खराब नहीं होता, सब अच्छे भी नहीं होते, ठीक है ना। तो हर एक में खराबी ना देखो, खामियां ना देखो, अच्छाइयाँ भी देखो। बैलेंस्ड चीज़ होगी तो देश आगे बढ़ेगा। सभी पॉलिटिशियंस को आप दिखाओगे कि सभी चोर हैं तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। जो कि इस फिल्म में है, आप सारे पॉलिटिशियंस को गलत नहीं देखेंगे। इसमें कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो अपने उसके लिए कुछ तरीके से कर रहे हैं, और कुछ हैं जो अच्छी लाइट में आपको दिखेंगे, जो कि रियल लाइफ में होता है। ललित पंडित जी के बारे में, उन्होंने 3 सॉन्ग दिए हमारी मूवी में, और काफ़ी अच्छे सॉन्ग है वो भी बाद में भी रिलीज़ होंगे एक एक करके। नहीं, वो धीमे धीमे आपको सुनने में आएंगे। अब पता नहीं क्या हाँ, हुआ। वही पूछना चाहूँगा कि आशुतोष जी आए नहीं, कुछ कभी महसूस हो रही है उनकी, और क्या रीजन था? He is not well. He is not well. नहीं वैसा नहीं है। आशुतोष जी किसी वजह से नहीं आए होंगे और ललित जी भी किसी वजह से नहीं आए यहाँ पे। जी, काफ़ी अच्छे गाने हैं, एक आइटम सॉन्ग है और उसके अलावा 2 गाने। नहीं, वो ललित जी के ही हैं गाने, तीनों। आइटम सॉन्ग सर का है, आइटम सॉन्ग का लिरिक्स सर का है जी। मस्त है। देख लेना भैया, अभी बताने का कोई तुक नहीं है इस समय। आप सुनेंगे वो बात। हाँ। वो वैसा आइटम सॉन्ग नहीं है जैसा आप समझ रहे हो। आपको पसंद आएगा। हाँ, वो भी अलग है स्टाइल, वो आइटम सॉन्ग भी अलग है। मस्त मस्त हवा मस्त मस्त। We have a last question. Anyone? Last question, please. Yes, actually, by choice, I was a teacher. Yes, sir. By accident, I was a politician. And by profession, I am a lawyer. By choice, I was a teacher. I started my life teaching modern history. I entered the law. In the meantime, got into the IAS. I did not join. I entered the law. And then accidentally, I became a politician.
That's how it all happened. My future plans is to write more lyrics for you guys. Thank you. Thank you so much. इधर स्ट्रेट सेंटर में इधर स्ट्रेट स्टार कास्ट स्टार कास्टर है सर कपिल रुको 2 मिनट रुको ना बैठ जाना तुम बैठ जाना 2 मिनट रुक जाओ